Good morning, students. I am Neelam, your maths teacher from JPS Academy, Asand. As you know, all students, that we are doing chapter 10, Understanding Elementary Shapes. And students, exercise A to D we have done, and today we are going to start our next topic, quadrilaterals, which are on book page number 180. And students, about this topic you have studied in chapter 9 already. So today we will discuss again the name of the quadrilaterals, different quadrilaterals and their properties. So students, firstly, quadrilateral, a polygon which is made up of 4 line segments. एक ऐसी पॉलीगन जो 4 लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करके फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. इन क्वाड्रिलेटरल देयर आर 4 sides, 4 angles, 4 vertices and 2 diagonals. So students, we are going to discuss quadrilateral, and first quadrilateral name is parallelogram. A quadrilateral in which pair of opposite sides are parallel is called a parallelogram. Parallelogram हाफ नेम से क्लियर हो रहा है, पैरेललो, पैरेलल. सो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल मींस 4 साइडेड की एक ऐसी पॉलीगन जिसमें अपोजिट साइड्स का जो पेयर है वो पैरेलल होता है, दैट इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम. In the figure, ABCD is a parallelogram with AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. You are looking here that this figure ABCD. This is a figure of parallelogram. Students, pair of opposite sides. तो ABCD ये एक parallelogram है और AB के अपोजिट कौन सी साइड है, CD, और AD के अपोजिट साइड कौन सी है, BC. सो सिंगल एरो जहां रिप्रेजेंट हुआ है, इट मीन्स दीज 2 इज 1 पेयर एंड डबल एरो 1 पेयर. तो 2 पेयर्स हो गए स्टूडेंट्स. और ये 2 साइड्स देखो आप, दोज साइड्स विच नेवर मीट्स, दोज लाइन सेगमेंट्स विच नेवर मीट्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स. सो दीज 2 आर पैरेलल एंड दीज 2 आर पैरेलल. सो पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. So this is a parallelogram. And now properties of parallelogram. Opposite sides of a parallelogram are equal and parallel. Opposite sides क्या होती हैं, equal भी होती हैं और parallel भी होती हैं. Next, opposite angles are equal. इसमें opposite angles, एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल C के, और एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल D के. These properties students you have to understand very very carefully and remember all the time these properties. Diagonals of a parallelogram bisect each other. जो इनके diagonals होते हैं, अगर मैं इनके diagonals draw करूं BD और A to C, इनके जो diagonal होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, bisect करते हैं. Bisect means हाफ हाफ पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. बाय मीन्स 2, सेक्ट मीन्स डिवाइड करना, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सेक्टर मीन्स पार्ट्स. So students, these are the properties of parallelogram. Now next quadrilateral name is rectangle. We will study now about rectangle. And rectangle figure you all know students. rectangle में क्या होता है, PQRS. ये मेरे पास एक rectangle figure है. इसमें क्या होता है students, rectangle में all angles कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के. 2 dimensions होती है ना rectangle के अंदर, length and these breadth. So students, this one pair of opposite sides and this second pair of opposite sides. So rectangle में भी क्या होता है students, opposite sides are equal and parallel. PQ किसके इक्वल हो जाएगा, RS के, और PS किसके इक्वल हो जाएगा, QR के, और ये पैरेलल भी होंगी. और स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइंस का सिंबल हम कैसे डालते हैं, 2 स्टैंडिंग लाइंस को हम कौन सी लाइंस बोलते हैं, पैरेलल लाइंस. सो
और ईच एंगल कितना होता है 90 डिग्री रेक्टेंगल के अंदर. सो स्टूडेंट्स नाउ कम अ पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल इज अ राइट एंगल इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल. जिस पैरेललोग्राम का ईच एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा वो रेक्टेंगल बन जाता है. इन द फिगर PQRS इज अ रेक्टेंगल एज ऑल द एंगल्स आर इक्वल्स टू 90 डिग्री. PQ पैरेलल है RS के, पैरेलल, दिस इज अ सिंबल ऑफ पैरेलल. एंड PQ इक्वल भी है RS के बिकॉज हमने बोला अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. और सेकंड पेयर कौन सा अपोजिट साइड्स का? PS is parallel to QR and PS is equals to QR. इक्वल भी है और पैरेलल भी है. सो प्रॉपर्टीज अपोजिट साइड्स क्या आई हैं हमारे पास? इक्वल एंड पैरेलल, ईच एंगल 90 डिग्री, डायगनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. स्टूडेंट्स इसके भी अगर हम डायगनल्स बनाते हैं तो इसके डायगनल्स भी क्या करेंगे? एक दूसरे को कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे और टू पार्ट्स में से डिवाइड कर रहे हैं ना, टू पार्ट्स में. सो एंगल्स बाइसेक्ट ईच अदर. और डायगनल्स कैसे होंगे? ये डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ओके, एंड ये दोनों इक्वल भी होंगे, दोनों डायगनल्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड quadrilateral is rhombus, a parallelogram in which all sides are equal. हमने rhombus को पहले चैप्टर 9 में भी स्टडी किया स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से. जिस पैरेललोग्राम की ऑल साइड्स इक्वल होती है वो क्या होता है? rhombus. एंड स्टूडेंट्स यू नो इन अ स्क्वायर में भी क्या होती है? ऑल साइड्स इक्वल. सो स्क्वायर एंड rhombus both are same figure. In the figure ABCD is a rhombus. AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. AB equals to BC and CD is equals to DA. All sides are equal. So students this is rhombus. अब सभी स्टूडेंट्स देखेंगे ABCD. इसमें क्या होता है? rhombus में all sides क्या होती हैं? Equal होती हैं. AB is parallel to CD. Opposite side इसके parallel होती है और ये वाली AD किसके पैरेलल होता है? BC के पैरेलल होता है. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल. AB, BC, CD एंड DA ऑल आर इक्वल. सो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. इसमें भी अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. एंगल A इक्वल होता है एंगल C के और एंगल B किसके इक्वल होता है? एंगल D के. और इसके जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट मींस टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और बाइसेक्ट भी किस पे करते हैं? 90 डिग्री के एंगल्स पे बाइसेक्ट करते हैं बिकॉज ऑल साइड्स इक्वल है ना. ऑल साइड्स इक्वल हैं तो जो इसके डायगनल्स आएंगे वो एक दूसरे को किस पे बाइसेक्ट करेंगे? 90 डिग्री के एंगल पे. स्टूडेंट्स अब हमने ये देखा पैरेललोग्राम में भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और डायगनल बाइसेक्ट करते हैं. रेक्टेंगल में भी डायगनल बाइसेक्ट करते हैं और ऑल एंगल 90 डिग्री होते हैं. रोम्बस में हमने देखा अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और डायगनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे, राइट एंगल पे. सो डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, राइट एंगल्स. And next, square, a parallelogram in which all sides are equal and each angle is a right angle. हम rhombus में क्या बोलते हैं? all sides are equal and opposite angles are equal. But rhombus और square में एक main difference क्या है? square में क्या होता है? all angles क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं. So, a parallelogram in which all sides are equal and each angle is right angle is called a square. In the adjacent figure ABCD is a square as because इसमें all sides equal हैं AB, BC, CD and DA. और all angles भी कैसे हैं? 90 डिग्री के बने हुए हैं और अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल. AB पैरेलल होता है CD के एंड AD पैरेलल होता है BC के. So students, this is a square quadrilateral. Now come on the properties of square. Square की properties क्या होती हैं students? Come on next page 181. प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स क्या क्या होती हैं? ऑल साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ईच एंगल 90 डिग्री एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एंड आर इक्वल. इसके भी जो डायगोनल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बिकॉज ईच एंगल 90 डिग्री है तो जो डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे वो भी किस पे बाइसेक्ट करते हैं? राइट एंगल पे. So these are the properties of all the quadrilaterals. Now come on next quadrilateral, trapezium. This is a special type of
quadrilateral, and this quadrilateral we already studied in chapter 9. A quadrilateral whose one pair of opposite side is parallel and other pair of opposite side is non-parallel is called a trapezium. जिस क्वाड्रिलेटर में स्टूडेंट्स आप देख रहे हो ये वन पेयर तो पैरेलल है, पीएस किसके पैरेलल है, क्यूआर के, बट अदर पेयर पैरेलल नहीं होता, पीक्यू इज नॉट पैरेलल टू एसआर. सो it is written here that in the figure PQRS is a trapezium as PS is parallel to QR and PQ and SR are non-parallel. एक पेयर तो पैरेलल होता है और जो अदर पेयर होता है ये पैरेलल नहीं होता. So students, this is a trapezium, but now we are studying again one more trapezium, isosceles trapezium. Isosceles trapezium means isosceles in which two sides are equal ना. isosceles triangle पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं isosceles trapezium is the trapezium in which non-parallel sides are also equal. जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. ट्रेपेजियम, सिंपल ट्रेपेजियम में हमने क्या बोला, वन पेयर तो पैरेलल होता है, अदर पेयर पैरेलल नहीं होता. इसमें क्या होता है, नॉन पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, साइड्स इक्वल होती हैं. वहां हमने पेयर ऑफ साइड्स लाइन सेगमेंट्स की बात करी थी. हमने बोला था कि क्यू आर तो पैरेलल है पीएस के, लेकिन पी क्यू पैरेलल नहीं है एसआर के. यहां भी पैरेलल होने की बात नहीं है, यहां साइड्स के इक्वल होने की बात हुई है. तो यहाँ पे वन पेयर तो पैरेलल रहेगा, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, बट ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के. ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के. सो स्टूडेंट्स यहाँ लिखा है देखो, एक पेयर तो पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, बट ये वाला पेयर पैरेलल नहीं है बिकॉज ये वाली देखो लाइन ऐसे जा रही है और ये वाली ऐसे जा रही है, ये पैरेलल नहीं है बट ये इक्वल होती हैं. ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, लेंथ में इक्वल होती हैं. सो दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. नाउ नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर इज काइट. Different shape, a quadrilateral in which two pair of adjacent sides are equal. Two pairs of adjacent sides are equal, but the opposite sides are unequal is called a kite. Students क्या कह रहा है वो, two pair of adjacent sides. Adjacent sides कौन सी होती है, when two line segments have a सेम एंडिंग पॉइंट. जब टू लाइन सेगमेंट्स का एंडिंग पॉइंट सेम होता है दैट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स. सो स्टूडेंट्स हमारे पास टू पेयर्स मिलेंगे जिनका एंडिंग पॉइंट सेम होगा, वो इक्वल होती हैं बट अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल. सो देखते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज अ फिगर ऑफ काइट. काइट की शेप सबको मालूम है ना. तो स्टूडेंट्स क्या होता है इसमें, ए टू बी एंड ए टू डी, दीज आर टू एडजेसेंट. एडजेसेंट कैसे है, बिकॉज बी टू ए और डी टू ए एंडिंग पॉइंट सेम है ना ए. सो वन पेयर तो ये हो गया. नाउ नेक्स्ट पेयर बी टू सी एंड डी टू सी, और यहाँ एंडिंग पॉइंट कौन है, सी. सो दीज टू, ये वाला दीज टू साइड्स, ये एक पेयर हो गया. ऊपर वाला पेयर और नीचे वाला पेयर, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल. एडजेसेंट साइड्स का टू पेयर्स कैसे होते हैं, इक्वल, बट अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल. अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल मीन्स ए बी के अपोजिट कौन है, सी डी. ये तो इक्वल नहीं है, इक्वल तो ये दोनों है ना, ये दोनों इक्वल थी बट अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल. ये वाली ए डी भी बी सी के इक्वल नहीं है. सो स्टूडेंट्स इन द फिगर ए बी सी डी इज अ काइट. ए बी सी डी इज अ काइट in which AB is equals to AD and BC is equals to CD, but AB is not equals to BC. AB और BC ये वाली दोनों इक्वल नहीं है बिकॉज ये और ये इक्वल थी, ये और ये दोनों इक्वल नहीं होंगी. So these are the quadrilaterals. Now come on exercise question which is based on these quadrilaterals. Thanks and have a nice day.